Good evening, dear students of class 8. Today I am going to teach you about the poem The Ant and the Cricket. Two days before, I have given you some difficult words and provided you their meanings, which you have noted down. And now, first, I am going to recite this poem for you, and then I will explain the content, the whole content. The very first thing, friends, and I think you must have the books, the course books with you. You must have taken them from the library. So when you watch this video, please open your book and follow the lines with me. So friends, the poem The Ant and the Cricket is a kind of a fable. It is a fable. What is fable? It is in your notebook, the word meaning I have given you, provided you. Fable is a folk tale. Folk tale means a story, a tale, which is not written by someone particular person, but it is in custom. And usually the folk tales, the folk stories are constructed with the supernatural characters or the natural creatures. Suppose some animals or birds or the celestial bodies, stars, sun, moon, they are the characters of the folk tales. So here, this rule or this situation also is followed, that there are two creatures, two forest creatures, ant and the cricket are the characters of this story. And what fable does? The fable does a purpose of giving a moral message to the society so that the society can learn a lesson. So these kind of stories are constructed or are in custom for the guidance of the society, to tell the society what is right and what is wrong, what to do and what not to do. So first I am going to tell you the meaning given here in this book, in your textbook. A fable is a story often with animals, as I tell you, animals, birds, celestial bodies. So with animals as characters, that conveys a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance. As I told you, the significance, far-reaching significance, means to teach an important lesson to the society, to tell the society what is right, what is wrong, what to do, what not to do, what are the duties of a person, and what should a person follow, or what he or she should avoid for the betterment of oneself and for the betterment of the society. So this significance
the story or the folk tale provider, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. So four-legged cricket is a creature, a forest creature, a wild creature, which is found in some wild areas, forests and bushes where a lot of trees and bushes are there over there. So, but cricket is a symbol. Actually, friend, every poem is written or every story is constructed with some symbol. Sometimes it is directly, कभी कभी सीधे सीधे बात कही जाती है, and sometimes it is indirectly told with using some symbols taken from the universe and surroundings. So here are two symbols. One symbol is an, and this symbol is for hard work. This symbol is for dedication. This symbol is for commitment, for a goal, for a target. This symbol is for a meaningful life. This symbol is for a useful life. And this symbol of cricket is just opposite. This is for hard work and this is for laziness. No work. This is for commitment and this is for carelessness. In cricket has no care about himself or about anybody. So this creature lives life of a commitment, of a concern, of some responsibilities, liabilities. But this live life in a very careless manner, having no commitment, having no dedication, having no work at all. So these are two symbols over here and the cricket. So in the society, in the human society, you see, there are some persons who are like this creature, and some persons who are like this creature. No matter how many they are, what is the percentage of the persons, means this kind of creatures are more or this kind of creatures are more. It is a worthless question, having no importance. The point is that some persons are, maybe they are large in number, ज़्यादा हो सकते हैं वो, so we can say many persons are like this creature, being hardworking, dedicated, committed, and few persons are of this manner, this character. Okay, so leave that point. No need to go in numbers, but see what you want to be, what you want to follow. Do you want to be like this or do you want to be like this? I think no person would like to be like this. So now I am going to recite the poem. Here goes the poem. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me? At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet
and all trembling with cold. Away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by? When the weather was warm, quoth the cricket, not I. My heart was so light, that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say, go then, says the ant, and dance the winter away. Thus ending, he happily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs, and some have 2. Friends, this poem, as I told you, that such kinds of poems are not written by some person. So this is adapted from Aesop's fable. Okay, and the person connected the name with the folk stories. They are only the editors, you can say, or the collector of the story, but they are not the writer of the story. So this is adapted from Aesop's fables. Now, as I in the beginning of the first part of the video, a small or a brief explanation or central idea of the poem, but now I am going to explain it thoroughly. It is a story when, in the beginning, a young cricket who is very habitual to live the life in enjoyment, accustomed to sing. The line is here, friend, accustomed to sing. Accustomed to sing means he is habitual of enjoyment, enjoying life. यानी उसे जीवन में बस नाचने, गाने, मस्ती करने की ही आदत है, वही उसका रूटीन है. His routine is singing, dancing, etc. Nothing else. Through the warm, sunny months of gay summer and spring, or when he does these activities, कब वो ऐसा करता है? When the weather is very passionate, the weather is very happy, the weather is very favorable. यानी जब मौसम अनुकूल है, अच्छा है, गुड है, उस समय वो हार्ड वर्क करने के बजाय मस्ती करता है, एंजॉय करता है. लेकिन आफ्टर दैट बिगिन टू कंप्लेन, उस समय शिकायत करना शुरू कर देता है. व्हेन ही फाउंड, जब उसे ये पता लगता है दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम, कि घर में तो कुछ है ही नहीं. एवरी वेसल इज एम्प्टी, नथिंग टू ईट, एंड द वेदर हैज चेंज्ड नाउ. Now the winter has come, the favorable weather has gone. जो अच्छा मौसम था वो तो चला गया. अब सर्दी का ऐसा मौसम आ गया है जब हम बाहर नहीं रह सकते, हमें अंदर बचकर रहना होगा. पर अंदर रहने के लिए, हमें सरवाइव करने के लिए जो हमारी सेविंग्स हैं वो ही हमें सरवाइव करने में हेल्प करेंगी. लेकिन उन्हें हम कलेक्ट कब करते हैं? जो हार्ड टाइम्स की सेविंग है उन्हें हम गुड टाइम्स में जो है वो सेव करते हैं, कलेक्ट करते हैं. जब गुड टाइम्स हैं, जब वर्क करने का टाइम है, जब हम काम कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, जब हम कहीं जा सकते हैं, जब हमारे पास फ्रीडम है कुछ करने की, तब हमें उस समय के लिए कलेक्शन करना होता है जब हमारे पास कोई हार्ड टाइम आए, जब हम बाहर ना जा सके, जब हम कुछ कर ना सके. लाइक जैसे अभी कोरोना काल में
तो जब हम बाहर निकल सकते हैं, जब हमें छूट होती है, तो उस समय का इस्तेमाल करते हुए हम वो कलेक्शन करते हैं, उस समय के लिए कलेक्शन करते हैं, सेविंग करते हैं जब हम जिन दिनों में बाहर ना जा पाए। और यदि हमने सेविंग नहीं करी होगी, इमेजिन कीजिए कि सपोज 3 दिन बाहर जाने की छूट थी, उस समय हम 3 दिन घर में बैठे रहे, टीवी देखते रहे, बाहर नहीं गए, जो घर में था उसे हमने इस्तेमाल किया, फिर बाद में 2-3 दिन बाहर जाना मना हो गया, अब घर में कुछ है नहीं, बाहर जा नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो भूखा रहना पड़ेगा और या फिर जो हमारे आस पड़ोस में कोई है उससे हमें मांगना पड़ेगा कि हम नहीं कलेक्शन कर पाए, वो खत्म हो गया है, हमारा पानी खत्म हो गया है, या हमारा जो है जो सामान था किचन में कुछ वो खत्म हो गया है, उसके लिए हमें उनसे मांगना पड़ेगा। तो वही स्थिति है कि जब हम वर्क कर सकते हैं उस समय अगर हम सेविंग नहीं करेंगे, अपने हार्ड टाइम के लिए कलेक्शन नहीं करेंगे, तो हमें हार्ड टाइम आने पे दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा और दूसरे से मांगना पड़ेगा। यही सिचुएशन जो पोएट है वो इस क्रिकेट के माध्यम से थ्रू दिस मीडियम हमारे सामने रखते हैं। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. बाहर सर्दी का मौसम है, बर्फ गिर रही है, पेड़ों पर बर्फ है, there is snow on the tree, there is snow on the ground, there is snow on each and every plant, everything is covered with snow. So now जब सब कुछ बर्फ से ढका है तो बाहर भी इस क्रिकेट के लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं है। अब इसे चिंता होती है। नाउ द क्रिकेट गोज मैड, ओके, ही इज नाउ वरीड। व्हाट इज द क्वेश्चन रनिंग इन हिज माइंड? व्हाट विल बिकम ऑफ मी? अब मेरा क्या होगा? नाउ क्रिकेट इज सेइंग एंड थिंकिंग दैट मेरा क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ मी, क्योंकि मैंने कोई सेविंग नहीं की। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, जब भूख बहुत बढ़ गई, बर्दाश्त से बाहर हो गई और कोई चीज खाने के लिए पास में नहीं थी, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ट्रैवलिंग विद कोल्ड, और हमें गर्म कौन रखता है हमारे शरीर को, जो हमें ऊर्जावान कौन रखता है, जो खाना हम खाते हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए, उसे हीट देने के लिए भीतर कुछ होगा नहीं, तो ऐसे में ठंड लगती है। तो अब क्रिकेट के साथ भी यही हो रहा है कि वो पूरी तरह से भीग रहा है और कमजोरी उसको महसूस हो रही है, ठंड से वो कांप रहा है। एंड ही सेट ऑफ टू ए माय इंडिया, तो अब आखिर में उसने डिसीजन किया कि मुझे किसी से हेल्प लेनी चाहिए, किसी से हेल्प मांगनी चाहिए, और इसके लिए वो चीटी के पास, इस एंड के पास जाता है ताकि वो अपने आप को सेव कर सके, टू कीप हिम अलाइव। और किस बेस पे उसे ये होप है, ये उम्मीद है कि वो कुछ उसे खाने के लिए या सर्वाइवल के लिए देगी। क्या क्या देगी? शेल्टर फ्रॉम रेन, बारिश से बचने के लिए शेल्टर दे देगी कि भाई बारिश आए तो मैं तुम्हारे यहां रह सकता हूं। एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और पेट भर खाना दे देगी, अनाज दे देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, इस समय उसकी एक ही इच्छा है कि कहीं से उसे उधार मिल जाए, मदद मिल जाए, सहायता मिले। और इस सहायता को अपने मन में वो सोचता है कि he would repay it tomorrow, आज वो लेगा, जब अनुकूल वक्त आएगा तो वापस कर देगा, he will return it. If not, और यदि उसे ये मदद नहीं मिलती, he must die of starvation and sorrow, तो वो भूख से मर जाएगा। तो मदद उसे जरूर चाहिए, he need help in a very very hard time। लेकिन अब देखते ये हैं स्टूडेंट कि क्या ये एंट इसकी हेल्प करती है या कुछ और होता है। Says the ant to the cricket, अब क्या कहती है ये चींटी इसको
आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बहुत पोलाइटली इन अ वेरी जेंटल मैनर वो बात करती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सेवक हूं, दोस्त हूं, जो चाहिए, बट वी एंड नेवर बोरो, वी एंड नेवर लेट, लेकिन एक हमारा सिद्धांत है, मजबूरी है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। चीटी कहती है बड़े ही डिप्लोमेटिक वे में, आई एम रेडी टू हेल्प यू, बट प्रॉब्लम इज दैट वी इन आवर कम्युनिटी, हमारे समुदाय में एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है कि ना तो हम उधार लेते हैं और ना उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? When the weather was warm, जब मौसम अच्छा था, फेवरेबल था, अनुकूल था, उस समय तुमने कुछ इकट्ठा नहीं किया? टोल्ड द क्रिकेट, नो। तो आंसर क्या दिया इस क्रिकेट ने? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं। क्यों नहीं किया? ही टेल द रीजन, कारण बताता है कि माई हार्ट वॉज सो लाइट, उस समय मैं इतना हल्का महसूस कर रहा था, मेरे दिल में खुशी थी और मैं परेशान भी नहीं था, तो ध्यान ही नहीं गया मेरा कि कल को जरूरत पड़ सकती है, सब कुछ उपलब्ध था मेरे पास, एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन सराउंडिंग, आसपास सब मौजूद था। तो मैंने अपने समय को कैसे बिताया? आई सैंग डे एंड नाइट, बस दिन रात मैं गाता रहा, नाचता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड, क्योंकि सारी प्रकृति में प्रसन्नता बिखरी हुई थी, सुंदरता थी, प्रकृति इतनी अच्छी थी, इतनी मनमोहक थी उस वक्त कि मुझे और कुछ नहीं सूझा, मैंने बस खाया पिया और एंजॉय किया। यू सैंग, सर यू से, तो चीटी ने कहा, आपने कहा कि आप गाते रहे, गो देन एंड डांस द नीडल अवे, तो उस समय आप गाते रहे, तो अभी आप क्या करें? नाउ द एंड इज टोंटिंग, ओके, द एंड इज टोंटिंग, वो टोन कर रही है, इन सार्काज्म, व्यंग्य की भाषा में मजाक उड़ा रही है, ओके, मोकिंग द क्रिकेट, द एंड इज मोकिंग द क्रिकेट। तो कहा उसने, चीटी ने, कि जाइए अब और अब जाके सारी सर्दी नाचिए, गर्मी भर तो आप गाते रहे, अब सर्दी भर आप आराम से नृत्य कीजिए। दस एंडिंग, ये कहानी यहां समाप्त हो जाती है कि एक क्रिकेट, उसने अच्छे मौसम में सिर्फ मस्ती की, कुछ कलेक्ट नहीं किया, जब सर्दी आई तो अपने बारे में वो चिंतित हो गया, अब मेरा क्या होगा, मेरे पास कुछ है नहीं। मदद के लिए वो चीटी के पास गया, इस उम्मीद में चीटी उसकी मदद करेगी, लेकिन चीटी ने बहुत ही विनम्रता से, बड़ी ही शालीनता से उसे अपनी मजबूरी बता दी और सीधा जवाब दे दिया कि तब आपने गाना गाया, अब आप आराम से नाचिए। उसका मजाक बनाया, उस पर टोंट किया, यह कहानी समाप्त हो जाए। अब he hastily lifted the wicket, उसने जल्दी से अपने कदम उठाए, and out of the door turned the poor little cricket, और उस बेचारे क्रिकेट को दरवाजे के बाहर कर दिया कि मेरे यहां तुम्हारे लिए ना शेल्टर है ना फूड है। अब कभी कहता है, फोक कॉल दिस अ फेबल, लोग कहते हैं कि ये एक लोक कथा है, अ फोक स्टोरी, एक फोक स्टोरी है, फोक टेल है, फेबल है इसके बारे में, लेकिन आई विल वारंट इट ट्रू, और कभी कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये सच है, शायद ऐसा हुआ होगा। पशु पक्षियों के बीच ये कहानियां जो बनाई गई हैं, तो ये कहानी बनाई गई, लेकिन एक्चुअल में शायद कहीं किसी इंसान के बीच समाज में ऐसा हुआ होगा और उसको लेके ये कहानी शायद बना दी गई। यानी ये इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है जिसको ऐसे सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो पोएट इज सेइंग दैट लोग इसको फेबल कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये फेबल नहीं है, ये एक सच्चाई है, हकीकत है। और क्यों मुझे ऐसा लगता है? बिकॉज सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2, क्योंकि जो 4 leg क्रिकेट है वो तो चलो होते हैं, देखे हैं, लेकिन मैंने सोसाइटी में, समाज में ऐसे 2 पैरों वाले क्रिकेट को भी देखा है। ऐसे 2 पैरों वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो इस क्रिकेट की तरह ही जीवन जीते हैं,
अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझते हैं और अपने जीने की तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं और अपना आधार नहीं बनाते हैं, अपना बेस, अपनी जड़ें मजबूत नहीं करते हैं, और उस कंडीशन में उन्हें औरों पर निर्भर होना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी नीड्स के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। दूसरों पर उन्हें निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट में अगर किसी व्यक्ति का कोई बेस, कोई रूट्स नहीं है, उसने नहीं बनाया या फिर किसी वजह से वो नहीं बना, तो उस कंडीशन में उसे दूसरों की मदद लेनी होती है। स्टूडेंट, यहाँ मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा कि मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। इस स्टोरी का ये मॉरल नहीं है कि आपको मदद नहीं मांगनी चाहिए। कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान अपने सभी कार्य खुद नहीं कर सकता है। अपना सर्वाइवल कोई भी पर्सन अकेले अपने बूते नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसे किन्हीं बातों के लिए दूसरों से हेल्प लेनी पड़ती है, दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। बट जो स्टोरी का मॉरल है, मैसेज है, वो ये है कि अगर हम अपनी लाइफ को लेके केयरलेस हैं, इरेस्पॉन्सिबल हैं, गैर जिम्मेदार हैं, लापरवाह हैं, केयरलेस हैं, उस कंडीशन में अगर हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़े, डिपेंड होना पड़े, वो गलत। दूसरों से हेल्प मांगना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरों का बोझ बनना, दूसरों पर अपना पूरा बोझ डालना, दूसरों पर डिपेंड हो जाना अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी लाइफ के लिए, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेड एनीवे। दिस इज द moral and message of the poem. So here the explanation is completed here, and I hope that you must have got the point. You must have understood the content of the poem, the central idea of the poem. So students, this is very inspiring and guiding poem for you, for the students, for the junior students. You are the beginning, in the beginning stage of the teenage. So poems are for enjoyment and as well as for message and moral. So thank you very much. And now the homework is that you learn the poem, and on the basis of your listening of the content and the explanation, please try to give the answer to the question which is given in the exercise. Thank you.